तेरे आए हम, दर्शन दे देना। वंदन अर्चन पूजन करते चरणों में तेरे नाम। शरण में तेरे आए हम, दर्शन दे देना। वंदन अर्चन पूजन करते चरणों में तेरे नाम। जय हो जय हो जय हो प्रभु जय हो। जय हो जय हो जय हो प्रभु जय हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साचर्य आप सभी को प्राप्त हो। और आपको भी। All things work for the good for those who love God. Respected Father Reginald, Reverend Father Vipin, Reverend Fathers, dear sisters, staff and students, good morning. We are around this Eucharistic table to thank the Lord for the precious gift of our beloved director who will be leaving us very soon to take up his new assignment. We have gathered around this sacred altar many times, joyfully to celebrate birthdays, feast days, hospital day, hostel day, so on and so forth before. But when it comes to that last moment, a moment of saying goodbye, we are unable to handle it. Our much loved and beloved director, Reverend Father Reginald D'Souza, is moving to a new place, Rai Bareli, St. Peter's School. His impending departure from amidst us in the hospital is very painful for us. When we look into the journey of our dear Father in this Nazareth family for the last 17 years, really, it was a journey of sacrifice, dedication, and full-pledged commitment. Dear Father Reginald, you stepped into the portals of Nazareth in the year 2003 as the assistant director. Since then, you did everything perfectly well. You have proved your leadership qualities at the very beginning, your ministry in Nazareth as an assistant director. Your capacity to win over hearts of people is really remarkable. Your enthusiasm and interest in handling your responsibilities is your hallmark. In the year 2014, you became the director of our hospital, and till date, you have accomplished your responsibilities so well and sincerely that, under your able guidance, the hospital has grown in all the dimensions. You had a dream for the hospital, and to attain it, you worked tirelessly. The God-given talents you never kept for yourself and shared them freely and fruitfully used to lift this institution to a greater heights. By your hard work, you have given facelift to the hospital and given a very imposing corporate image to it. You are a visionary, and your vision and plans really helped this institution to foresee the future and read the signs of times and go forward and become
a model for Temple of Healing. All appreciate your wonderful personality, not only because of your capability, but also because of your approachability. Tears in the eye of almost everyone, and pain in the hearts of plenty of missing you is the sure proof that how good you have been to all of us. All of us have experienced your care, concern, thoughtfulness, and guidance. As the members of this institution, you have placed us in your heart so lovingly and did everything for our good. You are a courageous person, so in times of trouble and turmoil, you could take right decision. You are a compassionate person and a friend to the sick and the needy. Your integrated personality and courage stood as a help in the midst of problems and to take right decisions at the right time. Dear Father Reginald, you have done much for this hospital and for each one of us. Nobody can replace you. You are a precious pearl and a beautiful human being. Indeed, we know you are so social and cordial, so people come to meet you from all the corners. You solve their problems with a smile on your face, so people feel encouraged and go back empowered. Your helping mentality has no limits. You are ready to spend your precious time for others without expecting anything in return. That is the beauty of your soul. None of us can forget you because you have given us your precious smile, time, guidance, support, encouragement, care, concern, and tips to improve. You are a courageous person who guides and corrects when it is needed. You always kept us very close to your heart. You always wished our good and wanted each one of us to bloom and to be known by our own good works. We thank the Lord for the precious gift of you, especially making you priest and messenger of God's love. You have offered many holy masses and prayed and shared God's love with us. We are going to miss your inspiring and discerning homilies and the way you made all of us joyful with your sense of humor. Our words are not enough to describe your goodness. We know it is also very hard for you to say goodbye and leave us. We hope and know that your blessings and prayers will always follow us. As you move from here, there are plenty of good things we can ponder over. Dear Father, we place you in the hands of God and pray for your good health and ask His choicest blessings on you. May God bless all your undertakings and future plans. Last and not the least, a big thank you for being so good to us. We are going to miss you so badly. Please do come back soon. This is our wish and prayer. With this humble desire and prayer, let us partake in this Holy Eucharist. सबको जय यीशु. First of all, thank you, Lima, for the beautiful introduction. And
all that you said about me. 17 साल के इस सफ़र में मैं आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। यह मिस्र बलिदान मैं आप सभी के मतलबों के लिए चढ़ाता हूँ और विशेष रूप से इस अस्पताल के लिए और आप हर एक लोगों के लिए। आज के खास करके सुसमाचार में हम पाते हैं कनानी स्त्री का वो अविचलित और अडिग विश्वास जो प्रभु के पास आकर अपने बेटी के चंगाई के लिए गुजारिश करती है। प्रभु के कठोर शब्द बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है, लेकिन वो कनानी स्त्री कहती है जी हाँ प्रभु, फिर भी मालिक के मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। बड़ा अविचलित अडिग और ऐसा विश्वास प्रभु ने जिक्र करते हुए कहा कि पूरे इज़राइल में मैंने नहीं देखा। और उनके अविचलित और अडिग विश्वास का बहुत बड़ा तोहफा त्वरित और तत्काल उस माता की बेटी की चंगाई के रूप में प्रभु ने एक बहुत बड़ा वरदान उस माता को दिया। और तभी उस माता ने प्रभु के चरणों को छोड़कर चली गई, लेकिन भरपूर विश्वास के साथ प्रभु को उन्होंने पाया। वही विश्वास आज हमारे दिलों में, हमारे मनों में, हमारे जीवन में रहना बहुत ज़रूरी है। अविचलित और अडिग विश्वास से अगर हमारे कदमों को हम प्रभु के साथ मिलकर कदम दर कदम आगे बढ़ाते हैं, हमारे जीवन में भी बहुत सारे वरदान प्रभु वैसे देते ही हैं और अनुभव के रूप में, और जो हमारे भावी जीवन के सपने हैं जो भी हैं प्रभु हम सभी को प्रदान करते हैं। तो आइए इस मिस्र बलिदान में हम विशेष रूप से विश्वास के लिए प्रार्थना करें। और आज माता कलीसिया जस्टिस संडे के रूप में मनाती है। न्याय इस संसार में, इस दुनिया में हर एक को बहुत ज़रूरी है। इस संसार में अलग अलग रूप से अन्याय हो रहा है। विशेष रूप से हम प्रार्थना करें कि सबको न्याय मिले और परमपिता परमेश्वर के उस योजना को सभी जानें, ताकि एक दूसरे को सम्मान करते हुए सभी के न्याय के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। आइए इस मिस्र बलिदान को चढ़ाने हेतु हम अपने पापों को बलिभांति जांचें, प्रभु से क्षमा की याचना करें, ताकि मिस्र बलिदान हम सभी योग्य रीति से चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनोवचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर,
प्रेम पाने आया, आंसू ले मैं आया, मिले मुझे तेरी साया। भूला भटकाया तब प्रेम पाने आया, आंसू ले मैं आया, मिले मुझे तेरी साया। हे प्रभु दया कर, मैंने पाप किए। हे प्रभु दया कर, मैंने पाप किए। क्षमा कर, मैंने पाप किए। हे प्रभु दया कर, मैंने पाप किए। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, स्वर्ग धरा की कण कण में होवे तेरी महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, स्वर्ग धरा की कण कण में होवे तेरी महिमा। धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं। धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं। तेरी स्तुति सब गाते हैं, महिमा गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, स्वर्ग धरा के कण कण में होवे तेरी महिमा। तू ही पिता तू ही ईश्वर है, स्वर्ग धरा के स्वामी है। तू ही पिता तो ईश्वर है, स्वर्ग धरा के स्वामी है। तेरा गुण सब गाते हैं, महिमा गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, स्वर्ग धरा के कण कण में होवे तेरी महिमा। ईश पुत्र तो यीशु है, परम प्रेम में परमेश्वर। ईश पुत्र तो यीशु है, परम प्रेम में परमेश्वर। जग के सारे पाप के हार हम कर गया करो। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, स्वर्ग धरा के कण कण में होवे तेरी महिमा। तू ही पावन तू ही प्रभु, पावन आत्मा संग तू ही पावन, तू ही प्रभु, पावन आत्मा संग तू। सर्वोपरि तू सर्वेश्वर, महिमा गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, स्वर्ग धरा के कण कण में होवे तेरी महिमा। आमीन 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 आमीन
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने भक्तों के लिए ऐसा वरदान तैयार किए हैं जिन्हें ना आंखों ने देखा न कानों ने सुना है। हमारे हृदय में अपनी प्रेम धारा प्रवाहित कर, जिससे हम तुझे सब कुछ में और सबसे बढ़कर प्यार करें तथा उस स्वर्गिक पुरस्कार के सहभागी बन जाएं जो हमारी कल्पना से परे है। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ। प्रभु यह कहता है, न्याय बनाए रखो और धर्म का पालन करो, क्योंकि मुक्ति निकट है और मेरी न्यायप्रियता शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी। जो विदेशी प्रभु के अनुयायी बन गए हैं, जिससे वे उनकी सेवा करें, उनका नाम लेते रहें, उनके भक्त बन जाए, वे सब जो विश्राम दिवस मनाते हैं और उसे अपवित्र नहीं करते हैं, मैं उन लोगों को अपने पवित्र पर्वत तक ले आऊँगा। मैं उन्हें अपने प्रार्थना गृह में आनंद प्रदान करूँगा। मैं अपनी वेदी पर उनके होम और बलिदान स्वीकार करूँगा, क्योंकि मेरा घर सब राष्ट्रों का प्रार्थना गृह कहलाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र। मैं आप गैर यहूदियों से यह कहता हूँ, मैं तो गैर यहूदियों में प्रचार करने भेजा गया और इस धर्म सेवा पर गर्व भी करता हूँ, किंतु मैं अपने रक्त भाइयों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने की और इस प्रकार उनमें कुछ लोगों का उद्धार करने की आशा भी रखता हूँ, क्योंकि यदि उनके परित्याग के फलस्वरूप ईश्वर के साथ संसार का मेल हो गया है तो उनके अलंकार का परिणाम मृतकों में से पुनरुत्थान होगा। ईश्वर ना तो अपने वरदान वापस लेता है और न अपना बुलावा रद्द करता है। जिस तरह आप लोग पहले ईश्वर की अवज्ञा करते थे और अब जबकि वे अवज्ञा करते हैं आप ईश्वर की कृपा पात्र बन गए हैं, उसी तरह आप जबकि ईश्वर की कृपा पात्र बन गए हैं वे ईश्वर की अवज्ञा करते हैं, किंतु वे बाद में दया प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने सबों को अवज्ञा के पाप में फंसने दिया, क्योंकि वह सबों पर दया दिखाना चाहता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 मार्ग सत्य जीवन तू राह दिखाता मसीहा तू, मार्ग सत्य जीवन तू राह दिखाता मसीहा तू। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने वहां से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। यीशु ने उन्हें उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे यह निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं केवल इज़राइल के घराने के खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने आकर यीशु को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, हे नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।
ख्रिस्त में प्यारे बहनों भाइयों, प्यारे पुरोहित भाइयों, आज निश्चित रूप से हमारे मिस्सा बलिदान का अर्थ ही कुछ अलग है, क्योंकि जहाँ पर हम इस गिरजाघर में हर्षोल्लास के साथ और बड़े ही आनंद के साथ मिस्सा बलिदान में भाग लेने आते थे, आज हम कुछ आंसुओं के साथ, कुछ विशेष प्रार्थनाओं के साथ इस गिरजाघर में मौजूद हैं। मैं देख रहा हूं कि आज की जो गाने का जो पन्ना है उसमें बहुत सारे बच्चे रो रहे हैं। फादर विपिन ने बहुत को रुलाया है। और मैं हर वक्त जब मैं टीचरों को क्लास लेता हूं तो मैं उनसे कहता हूं कि जब आपका रिटायरमेंट हो तो वातावरण ऐसा होना चाहिए कि सारा विद्यालय, सारे कर्मचारी, सारे बच्चे रो रहे हैं और अकेले आप हंस रहे हैं। इसका उल्टा नहीं होना चाहिए। इसका उल्टा नहीं होना चाहिए कि रोने वाले केवल आप और हंसने वाले सब, और लोग कह रहे हैं गया, बला टली। लेकिन मैं आज देख रहा हूं कि आप सब दिल से रो रहे हैं और फादर रेजी यहां पीछे बैठकर हंस रहे हैं। शायद यही कामयाबी की निशानी है कि हम संतृप्त हैं, हम संतुष्ट हैं, हम अपने कार्यों से प्रसन्न हैं। और मैंने संत पौलुस के शब्दों में अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। और संत सिमियन के शब्दों में कि अब मैं विदा ले सकता हूं, अब मैं यहां से जा सकता हूं। शायद वर्षों की गिनती से हम किसी व्यक्ति की सफलता को नहीं नापते। कोई किसी जगह पर 20 साल था, 25 साल था, इससे उसकी सफलता को नहीं नापा जा सकता। लेकिन शायद कोई व्यक्ति 3 साल, 4 साल, 5 साल किसी जगह था, लेकिन उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि लोग उसे भूल नहीं पाते। और मैं रजी को बहुत पहले से नहीं जानता था, उनको जानने लगा उस समय जब ये बहुत अधिक घायल थे। मैं सेंट जोसेफ कैथेड्रल में था शायद, या बिशप हाउस में था, और फादर रजी दुबले पतले, बहुत ही नादान, साधना सदन में थे। और एक दिन ये कटरा चले गए। कटरा से लौटते समय इसी अस्पताल के गेट के सामने, मेन गेट के सामने जहाँ से मरीज अंदर आते हैं, उस गेट के सामने कुछ हिंदू हॉस्टल के लड़कों ने इनको पकड़ लिया। किसी को नहीं मालूम है कहानी, किसी को मालूम है? किसी को नहीं मालूम। सिस्टर लोग मुझे भी देख रही हैं। हाँ, कुछ लड़कों ने इनको पकड़ लिया और जम के मारा, इतना जम के मारा कि ये उठ खड़े नहीं हो पा रहे थे। और जैसे हम लोग पिक्चरों में देखते हैं कि किसी को नीचे डाल करके पैर से, हाथ से कूट कूट के मारा जाता है, वैसे ये मारे जा रहे थे। अचानक इस कंपाउंड के एक लड़का शिबू करके, उसकी माँ, दोनों आ रहे थे। जब उन्होंने देखा कि बहुत भीड़ लगी है तो शिबू उतर कर देखा तो ये तो ब्रदर रेजी हैं। तो उसकी माँ ने बड़ी चतुराई चिल्लाई, अरे मेरा चेन खींच लिया, चेन तोड़ लिया। लड़के सोचे कि अब तो हम पकड़े जाएंगे। लड़के सब भाग गए, सारे लड़के हिंदू हॉस्टल के थे, सब भाग गए। उस वक्त नाजरत में हिंदू हॉस्टल के लड़के बहुत आया करते थे, क्योंकि यहाँ पर आप लोग थे, बहुत सारे लोग घूमते थे। हम लोगों को पता चला बाद में कि फादर रेजी को कुछ लोगों ने उठा करके साधना सदन वापस ले गए हैं। हम लोग दौड़ कर वहाँ पहुँचे, मैं, फादर ग्रेगरी, फादर ऑल्फी थे शायद। हम लोग पहुँचे, देखा तो एक व्यक्ति बैठा है जैसे क्रूज पर से उतारा गया हो। हम लोगों ने पूछा क्या हुआ, ये बोल भी नहीं पा रहे थे। चोट लगी है, शर्ट फटी है, पूरी गंदगी भरी है और यहाँ वहाँ सब नीला पड़ गया है। हमने पूछा हुआ क्या? इन्होंने कहा कि कुछ लड़कों ने मारा। कौन थे वो लड़के? हिंदू हॉस्टल के थे। क्यों मारा? तब पता चला कि कुछ ब्रदर लोग जो सेमिनरी में पढ़ते हैं वो कटरा से लौट रहे थे अपनी साइकिल से। वे लड़के वहाँ बैठकर चाय पी रहे थे हिंदू हॉस्टल के। उन्होंने उनको पकड़ लिया और उनसे पूछने लगे, और अंग्रेज की औलाद बहुत अंग्रेजी बोलता है, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी। उन्होंने बहुत चिढ़ाया। फादर जी यहाँ से उधर जा रहे थे। फादर जी ने उनको देखा तो उनको बोला कि ब्रदर्स यू गो, यू गो, यू गो।
हिंदू हॉस्टल को कहा कि ठीक है यू गो, अब तुम इधर आओ। उनको छोड़ा, इनको पकड़ा, इन्होंने उनके लिए अपना जीवन बलिदान चढ़ा दिया। उन्होंने पूरी कसर इनके ऊपर उतार दी। हम लोग उसके पीछे हिंदू हॉस्टल दौड़े, वहाँ पर गए। हम फादर ग्रेगरी और शिबू जाकर के हिंदू हॉस्टल के कमरे में कुछ लोगों को पकड़ा। हमने पूछा भैया क्या बात है, क्यों ऐसी बात कर रहे हो, क्यों मार रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भैया वो तो मारने वाले तो भाग गए, लेकिन इसका कारण ये है कि वो लड़के यहाँ बैठ करके कुछ लोगों को मारते हैं ताकि उनको चाय वाले से फ्री चाय मिले। दबदबा हमारा बहुत तगड़ा है। उस वक्त फादर रजी के दिल में दूसरों के प्रति सद्भावना, सहानुभूति अत्यंत भरी हुई थी। उस समय मुझे इनके प्रति बड़ा आदर सत्कार लगा कि बड़ा बड़ा संत आदमी है, इसने दूसरों के लिए बहुत मार खाई। और नहीं मालूम था कि जिस द्वार पर मार खाया था उसी का डायरेक्टर बन जाएगा। और 17 साल से उसी अस्पताल में आज भी विराजमान है। आज हम उनको विदाई दे रहे हैं। शायद ये रोने गाने का समय नहीं है, रोने से कोई फायदा नहीं। ये उस समय के लिए है जब हम उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं फादर रजी के व्यक्तित्व के लिए कि आप लोगों को एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने, जैसे प्रस्तावना में कहा गया, कि आपको दिल से प्रेम करता है, आपको समझता है, आपके प्रति सहानुभूति रखता है। अब आप जब रोते हैं तो वो आपके आंसू पोंछता है, जब आप दुखी होते हैं तो आपको सहारा देता है। निश्चित रूप से हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं एक ऐसे व्यक्ति के लिए कि ऐसा व्यक्ति आपके इस संस्था में इतने साल रहा, इतने लोगों की सेवा की। और हम उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हर वक्त दूसरों के लिए सोचा। आज के पहले पाठ में नबी इसायास कहते हैं, न्याय बनाए रखो और धर्म का पालन करो। न्याय बनाए रखो और धर्म का पालन करो। मेरे ख्याल से फादर रजी ने इन 17 वर्षों में यही किया है कि उन्होंने न्याय किया है, किसी के साथ अन्याय नहीं किया है और धर्म का पालन किया है। जो मुझे करना है वो मुझे अच्छे तरीके से करना है। सिर्फ करना नहीं है लेकिन अच्छे तरीके से करना है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर फादर रजी गुस्सा होते होंगे कैसे दिखते होंगे। मैंने आज तक नहीं देखा उनको, आप लोगों ने भी देखा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। फादर रजी जब गुस्सा होते हों तो कैसे दिखते होंगे। हम तो वैसे भी गुस्से में दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं फादर रजी ने उस ईश्वर के संकल्प को, विधान को बनाए रखा कि न्याय बनाए रखो, न्याय करो। और आज न्याय का इतवार मनाया जा रहा है संपूर्ण कलीसिया में। न्याय करो और धर्म का पालन करो। शायद यही आज फादर रजी आप लोगों को भी बताना चाहेंगे। आप लोगों से अपेक्षा रखते हैं कि आप जहां भी रहो न्याय करो, पक्षपात मत करो, धर्म का पालन करो। हर व्यक्ति का धर्म है, हर व्यक्ति के प्रति अपनी जिम्मेदारियां हैं, हर व्यक्ति के अपने कर्तव्य हैं और उनको भली भांति पूरा करना उसका धर्म है। चाहे वो नर्स हो, चाहे वो सिस्टर हो, चाहे वो फादर हो, चाहे वो वार्ड बॉय हो, चाहे वो डॉक्टर हो, जो कोई भी हो, हर व्यक्ति का अपना एक धर्म है। और उस धर्म के चक्र को पूरा करना, उस धर्म को भली भांति निभा करना, वो हर व्यक्ति का अपना निजी और व्यक्तिगत समर्पण है। और आज हम लोग खुशी मना रहे हैं कि फादर रजी हमारे साथ इतने वर्षों तक रहे, हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। आप लोग ही नहीं लेकिन जितने भी लोग, जितने भी बीमार व्यक्ति, अस्वस्थ व्यक्ति, जितने भी फादर सिस्टर्स उनके सानिध्य में आते हैं, उन सबको बड़ा आनंद प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी बात फादर रजी की मुझे ये लगी कि वो सबसे बहुत हंसते हुए बात करते हैं। मैं याद करता हूँ मेरी आंटी जो केरल में है, हम लोग केरल कभी कभी जाते थे बीच में गर्मियों की छुट्टियों में, और वो मुंह खोलकर दांत दिखाकर सबका स्वागत करती थी। किचन से बाहर निकले तो मेन डोर दिखता था, कोई भी मेन डोर पर घंटी बजाता था और अंदर आता था तो आंटी के शब्द थे, ओहो कौन है ये। कभी कभी बगल से पूछ रहे ये है कौन, ये है
लेकिन डायलॉग क्या था, ओ हो ये कौन आ रहा है। कई बार उनको यही नहीं मालूम था कौन आ रहा है, लेकिन डायलॉग बहुत तगड़ा था कि आने वाला कहता ओ हो मेरा क्या स्वागत हो रहा है। लेकिन शायद फादर रेजी ऐसी बात नहीं करते, लेकिन फादर रेजी बड़े ही दिल खोल कर हंसते थे कि अक्सर लोग डॉक्टर के पास जाने के पहले फादर रेजी के पास आते थे, फादर क्या करें, और फादर रेजी हंस कर कहते थे कुछ नहीं है, क्या है, और वो आदमी आधा ठीक हो जाता था, आधा स्वस्थ हो जाता था। शायद यही कुछ ऐसी सुंदर बातें हैं फादर रेजी के बारे में जो हमें आज उनके बारे में बड़े ही सद्भाव के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ, बड़े ही आनंद के साथ सोचने पर विवश करता है। और हम जानते हैं कि वे जहाँ भी रहेंगे बड़े ही प्रेम के साथ न्याय करेंगे और धर्म का पालन करेंगे। आज के सुसमाचार का जो अंश हम लोगों ने सुना है, जिसमें वो कनानी स्त्री प्रभु से प्रार्थना करती है और प्रभु से आशीर्वाद देते हैं। प्रभु उसकी बात शायद शुरू में नहीं सुनते, प्रभु उसको शायद अस्वीकार करने का ढोंग रचते हैं, लेकिन अंत में प्रभु उनसे कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और हम आज फादर रेजी के लिए ही प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता, अपनी इच्छा फादर रेजी के द्वारा पूरी कर और वे सदा तेरी इच्छा पूरी कर सके। हमारी यही प्रार्थना हो। हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं विशेष रूप से फादर रेजी के लिए प्रार्थना करने के लिए। हम आंसू भरी विदाई देने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन हम प्रार्थना से परिपूर्ण हृदय लेकर आए हैं उनके आगे आने वाले समय के लिए। अब तक जो समय था वो हमने देखा है, हम उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, लेकिन आने वाले कल के लिए, आने वाली जिम्मेदारियों के लिए, आने वाले धार्मिक कार्यों के लिए हम ईश्वर से विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहते हैं कि प्रभु उनको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, उनके चेहरे पर वो हंसी कायम रहे, वो सदा दूसरों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते रहें और लोगों के और ईश्वर की सेवा में स्वयं को सदा समर्पित करते रहें। इस वक्त मुझे एक शायरी याद आ रही है। एक कवि था जो कविता शायरी लिखता था। उसने पहली लाइन लिखी, यदि सूरज चांद न होते तो तारे न होते, यदि सूरज चांद न होते तो तारे न होते। दूसरी लाइन उसको नहीं मिल रही थी, बहुत देर से परेशान था, बहुत देर से परेशान था। ये सूरज चांद न होते तो तारे न होते, फिर वही लाइन। अचानक उसके 10-11 बच्चे, कवि था, 10-11 बच्चे दौड़ कर आए, बोले पापा पापा पापा। उसने सबको बहुत जोर से डांटा। उसकी धर्मपत्नी बाहर आई, बोली क्यों बच्चों पर चिल्ला रही हो। तो उस कवि ने कहा कि आहा, दूसरी लाइन मिल गई, दूसरी लाइन मिल गई। ये चांद सूरज न होते तो तारे न होते, ये चांद सूरज न होते तो तारे न होते, और अगर तू न होती तो सारे न होते। हम इस लाइन को कुछ दूसरी तरह से सुनेंगे। ये सूरज चांद न होते तो तारे न होते, ये सूरज चांद न होते तो तारे न होते, और अगर आप न होते तो हम सारे न होते। आज हमारे लिए ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि हम आज फादर रेजी के साथ इस पूजन विधि में भाग ले रहे हैं, और हम ईश्वर को दिल खोलकर धन्यवाद दे रहे हैं कि यदि फादर रेजी इस संस्था के डायरेक्टर नहीं होते तो शायद हम सब ऐसे न होते। और इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और फादर रेजी को धन्यवाद देते हैं उनके सभी सुंदर कार्यों के लिए, उनके तमाम सेवा कार्यों के लिए जो उन्होंने समर्पित किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन कहाँ से आ रहा है, कौन क्या है, कौन क्या मुझे देगा, किससे मुझे लाभ होगा। उन्होंने शायद ये गिनती नहीं की। उन्होंने निस्वार्थ रूप से सेवा की और उस पिता की इच्छा को पूरी करने का पूर्ण प्रयास किया। आज हम दिल खोलकर ईश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। यह पावन समय जब हम ईश्वर के सानिध्य में आए हैं, हम अपने
एक ऐसे व्यक्ति को जो हमारा अपना है। शायद हम कुछ समय के लिए दूर हो रहे हैं, लेकिन हृदय से, मन से, दिल से हम उनके साथ जुड़े रहेंगे। हम उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन पर अपनी छत्र छाया बनाए रखे, उन्हें कार्य करने की क्षमता और शक्ति प्रदान करे। प्रभु उनके सभी निवेदनों को स्वीकार करे, उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करे, जैसे कि प्रभु ने आज उस कनानी स्त्री की प्रार्थना को स्वीकार किया। प्रभु उन पर मेहरबान हो। जब वे यहां पर कार्य करते हुए आप सबों की तमाम इच्छाओं की पूर्ति कर रहे थे, प्रभु उनके साथ था। आज जब वो यहां से अपने नए गंतव्य की ओर जा रहे हैं, एक नए मकाम को हासिल करने जा रहे हैं, एक नई पदवी को ग्रहण करने जा रहे हैं, हम उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा की शक्ति उनके संपूर्ण जीवन में सदा बना रहे। वे प्रभु के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति और प्रभु के लोगों के प्रति अपनी सेवा की भावना सदा निरंतर बनाए रखें। प्रभु उनको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। प्रभु उनके परिवार के सभी सदस्यों को अपने संरक्षण में बनाए रखे। हम उनके भावी जीवन के लिए, भावी जिम्मेदारियों के लिए ईश्वर से दीनतापूर्वक प्रार्थना करें। आइए हम एक साथ मिलकर हमारे विश्वास को प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों मृतकों का फिर न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, कनानी स्त्री ने अपनी बेटी की चंगाई के लिए यीशु से बार बार अनुनय विनय की। यीशु के शिष्यों को के मना करने पर भी वह नहीं मानी और अपने विश्वास में दृढ़ बनी रही। उसके दृढ़ विश्वास को देखकर यीशु ने उसकी मनोकामना पूरी की। हम प्रभु यीशु के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं के लिए पिता ईश्वर से विनय करें और एक साथ कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम अपने संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप उन्हें अपनी आशीष तथा पवित्र आत्मा के वरदानों से परिपूर्ण कर दीजिए, ताकि वे देश भर में कैथोलिक कलीसिया के सभी भाई बहनों की देखरेख एक अच्छे गरीबी की तरह कर सके और हम सभी का विश्वास आपके प्रति और भी मजबूत बनाते जाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे प्रिय निर्देशक फादर रेजिनाल्ड के लिए, जिनके द्वारा आपने नाज़रेत परिवार में अनगिनत वरदान बरसाए हैं, अनेक लोगों को चंगाई प्रदान की है, कई विकास के कार्य उनके हाथों द्वारा संपन्न किया, गरीब एवं असहाय लोगों की मदद की, कई लोगों के दिलों को स्पर्श किया। उन सभी वरदानों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर, ताकि आने वाले दिनों में भी वे बड़ी उत्साह के साथ इस पुनीत सेवा को आगे बढ़ा सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, आपने फादर रेजिनाल्ड को एक पल्ली पुरोहित की जिम्मेदारी सौंपी है। हे प्रभु, हम विशेषकर सेंट पीटर्स चर्च रायबरेली के पल्लीवासियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, जिनकी देख रेख हेतु आपने फादर रेजिनाल्ड को नियुक्त किया है। वे एक सच्चे गरीबी के रूप में अपनी रेवड़ की देखभाल कर सकें।
उनकी कष्ट, दुख एवं चिंताओं में उनका सहारा बने। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम सेंट पीटर्स चर्च कॉलेज रायबरेली को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। फादर रिजनाल्ड को प्रधानाचार्य के रूप में इस कॉलेज में आपने नियुक्त किया है। हम उस कॉलेज के सभी छात्र छात्राओं को, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, शिक्षा के क्षेत्र में वह स्कूल ऊंचाइयों को छू सके। सभी बच्चे जो इस स्कूल से पढ़ते हैं वे सफलता हासिल कर सके, एक अच्छे नागरिक बन सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आज भारतवर्ष में इस रविवार को न्याय का रविवार के रूप में बनाया जा रहा है। हे प्रभु, आज के दिन हम उन तमाम दीन दुखी एवं ज़रूरतमंद लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, जो न्याय के लिए पुकार रहे हैं, जिन्हें कई सदियों से न्याय का इंतज़ार है। कुछ लोग जेल में हैं, कुछ घर की चारदीवारी के अंदर बंद हैं, कई कठोर पतियों की कुटपुतलियाँ बनकर जी रही हैं, कुछ बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं। सब के सब न्याय के इंतज़ार में हैं। हे प्रभु, हम उन सारे लोगों को आपके पावन हाथों में समर्पित करते हैं। उन सभी को न्याय मिले। आप न्याय करने वाले ईश्वर हैं। हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि हम सब सत्य, ईमानदारी एवं न्याय के अनुसार अपना जीवन बिता सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे चंगाई दाता ईश्वर, हम आज कोरोना वायरस से पीड़ित सभी मरीजों को तथा उनके परिवारजनों को आपके समक्ष लाते हैं। हे प्रभु, तू उन्हें अपने चंगाई भरे हाथों से स्पर्श कर सभी को रोग मुक्त कर दीजिए, जिससे वे अपने परिवार में पुनः खुशी के साथ शामिल हो सकें। हे ईश्वर, इस कठिन घड़ी में उनके परिवारजनों को ढाढ़स दे, उन्हें साहस दे, ताकि प्रभु कोरोना वायरस बीमारी का सामना कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे शांति दाता यीशु, आज हम देश भर की शांति के लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जिन भी देशों में अशांति का साया छाया हुआ है, आप उन सभी देशों में शांति, प्रेम व भाईचारे का उजागर करें, जिससे देश के उज्जवल भविष्य के पुनरुत्थान में सहयोग मिल सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। मैं विशेष रूप से नाजरत अस्पताल के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस अस्पताल में कार्यरत हर एक व्यक्ति के लिए दुआ मांगता हूँ। इस अस्पताल के निर्देशक के रूप में फादर लुइस और फादर विपिन इसके बागडोर संभालेंगे, और जितने भी इस अस्पताल के मैनेजमेंट में, विशेष रूप से हमारे सिस्टर्स, मेट्रन, प्रिंसिपल और सभी वार्ड के इंचार्ज सिस्टर्स जितने भी यहाँ पर कार्यरत हैं, और आप सभी के लिए जो मरीज़ों की सेवा में बुलाए गए हैं और उसको बखूबी निभा रहे हैं, प्रभु की भरपूर मात्रा में विशेष रूप से आपके ऊपर भी डॉक्टर्स, हमारे सहयोगी, सभी कर्मचारी और सभी लोगों के लिए जो गार्ड्स जितने भी यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, सबके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। विशेष रूप से उनकी सुरक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और अपने काम में और प्रेरणा और लगन के साथ करने के लिए, और जो भी लोग यहाँ पर आते हैं वो न्याय के साथ उनकी देखभाल करते हुए प्रभु के नाम पर उनको अच्छा स्वास्थ्य दिला सकें, ताकि वो सभी यहाँ पर आते हैं वो विश्वास भरे इस अस्पताल की तरफ और आप सभी की तरफ विश्वास के साथ आ सकें और स्वास्थ्य लाभ पाकर वापस अपने परिवार में लौट सकें, और इस अस्पताल के हर कदम की प्रगति के लिए, विकास के लिए, ईश्वर की अनगिनत आशीष के लिए विशेष रूप से मांगते हैं कि ये प्रभु इस अस्पताल को आप सुरक्षित रख और अपने छत्र छाया में बनाए रख, सबको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हमारे निजी आवश्यकताओं को मौन रूप से प्रभु के समक्ष रखें। हे दयालु पिता परमेश्वर,
हम तेरे पुत्र यीशु को हमें देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने कनानी स्त्री के विश्वास को देखकर उसकी बेटी को चंगा किया। हमें अनुग्रह प्रदान करके हम भी उस स्त्री की तरह हिम्मत न हारें और अपने अविचलित और अडिग विश्वास में दृढ़ बने रहें। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आमीन। भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारे उपहार ग्रहण करने की कृपा कर। इनके द्वारा तेरे और हमारे बीच पवित्र आदान प्रदान होता है। ये तेरे ही दान हैं, इनके अर्पण द्वारा हम तुझको ही प्राप्त कर सकें। ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नवनिर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते निरंतर एक स्वर से गाते हैं। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अम्बर, जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन, गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुना कर आते परम धन्यवाद
सब हर्षाते प्रभु के जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन, गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तुम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। कटोरा पीते हैं, जब ये रोटी खाते हैं, ये कटोरा पीते हैं, तेरे आने तक है प्रभु मृत्यु की घोषणा हम करते हैं। तेरे आने तक है प्रभु मृत्यु की घोषणा हम करते हैं। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी मंजली और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया के सुदिले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हमें अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्यकुरी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। आमीन।
आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का राज मिले और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर ने अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान करते हुए अनुचित और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति विवादन करें। क्रिस्त की शांति। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं और आज हमें यह संदेश देते हैं कि हम हमारा विश्वास अविचलित और अडिग बनाए रखें। धन्य है हम सभी जिनकी स्मृति भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त में अनंत जीवन प्रदान करे।
आप सबको जय यीशु। 17 साल के इस सफ़र का विदाई का अंतिम क्षण आज आ गया है। बहुत सारे समारोह संपन्न हुए हैं और आज विदाइयों का जब पूर्ण विराम और नाजरत अस्पताल परिवार से जाने का समय आ गया है। मेरे कुछ धन्यवाद के शब्दों को ग्रहण करने का सब्र रखें, ये मेरा अनुरोध है। सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उनकी अनगिनत आशीष एवं कृपा के लिए जो उन्होंने मेरे पर बरसाई, उनको मेरे छत्र छाया में रखा और उन्होंने मुझे अपने छत्र छाया में रखा और सुरक्षित रखा। और मेरे दिए हुए जितने भी वरदान प्रभु ने दिए हैं उनको खोज निकालने के लिए उन्होंने बड़ी आशीष एवं कृपा मुझ पर प्रदान की, जिसको मैं जानता नहीं था। यहाँ पर खोजते बहुत सारे आशीषों को मैंने पाया है। मैं विशेष रूप से इस सफ़र के लिए और सुरक्षित सफ़र के लिए मैं विशेष रूप से परमपिता परमेश्वर को आज के इस शुभ दिन धन्यवाद देता हूँ। आगे बढ़ते हुए विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ पर जितने भी डायरेक्टर रहे मेरे पहले, उनके संरक्षण में मैं पला हूँ। फादर जोसेफ, फादर के एंटनी और उसके बाद फादर विपिन को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ मेरे साथ इन 6 साल के सफ़र के लिए। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया जो आप जानते हैं। और विशेष रूप से इस विदाई समारोह में बहुत दिन से वो काम कर रहे थे, रात दिन एक करते हुए जो भी प्रेजेंटेशंस वहाँ किए हूँ, रात को बैठकर बहुत देर तक उनको प्लानिंग करना और जिस तरीके से उसको बनाना जो आपने देखा है उसमें बहुत टाइम लगता है। और पूरे 6 साल में उन्होंने जो भी जितनी भी सेवा दी है हमारे साथ एक कंपेनियनशिप निभाया है। और उन्होंने मुझे यह महसूस होने नहीं दिया कि तुम अकेले हो। हर पल वो हमारे साथ रहे, दुख में सुख में, हर काम में, हर जो भविष्य में ये जो हम लोग का योजना थी भविष्य की पहले से, उन सब को साकार बनाने में उन्होंने मेरा बखूबी साथ निभाया। और उसको मैंने जैसे कहा इसके पहले भी इस इतिहास को, इन 6 सालों को मेरे जीवन के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में मैं लिखूँगा। ये बहुत बड़ा इतिहास इन 6 सालों का मेरा रहा यहाँ पर। मैं फादर विपिन को तहे दिल से और दिल की गहराई से मैं धन्यवाद देता हूँ और आपके आगे की यहाँ ज़िंदगी के लिए विशेष रूप से प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ। फादर विपिन, थैंक यू सो मच। I am also going to miss the very good singing that Father Vipin used to have here. We used to have together singing and lots of great extracurricular activities which Father Vipin used to do, and that used to be very perfectly given a touch and also accomplished. All that I am going to miss, and very especially the my birthdays and other things that Father Vipin has celebrated. I will never I may not have in the future to celebrate in that manner which Father Vipin has done for me in my celebrations also. Thank you so much for everything. तालियां बजाएं। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ पर उपस्थित पुरोहितों के लिए। फादर लॉरेंस, जिन्होंने 2003 में मैं फादर लॉरेंस के साथ एक उपयाजक के रूप में गया था और उन्हीं के छत्र छाया में याजक भी बना। उनके साथ 3.5 साल रॉबर्ट्सगंज में बिताने के बाद 3 जुलाई 2003 में फादर खुद ने गाड़ी चलाते हुए वहाँ से मुझे यहाँ पहुँचाया था। और आज जब विदा लेने का समय आ गया है, फादर लॉरेंस फिर भी आज मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं और
वो कह रहे हैं कि रायबरेली तक चलेंगे। रायबरेली में फादर ने 9 साल वहाँ पर सेवा दी है। रॉबर्ट्सगंज से वो रायबरेली गए थे। जब मैं यहाँ से रायबरेली जा रहा हूँ तो ज़रूर उनके किए हुए वहाँ पर काम बहुत सारे रहेंगे। फादर लॉरेंस को विशेष रूप से मैं मेरे पुरोहिताई जीवन की शुरुआत से जिस तरह उन्होंने मेरे पुरोहिताई की नींव रखी और जिस तरह से मुझे संभाला, मुझे मार्गदर्शन किया, उन सभी को और आज भी यहाँ पर उपस्थिति के लिए विशेष रूप से फादर लॉरेंस, थैंक यू सो मच। तालियां प्लीज़। फादर बाबू ने, मैं रोने वाला था, मेरे आंसू उड़ा दिए। और जो घटना की जिक्र की थी वो एक्चुअली मैंने किसी से नहीं कहा। आज फादर बाबू ने खुलासा किया कि ऐसा हुआ था। किसी को बचाने के चक्कर में, किसी को कोई मारने ही वाले थे, उनको बचाने के चक्कर में मैं खुद बलि चढ़ गया था। लेकिन फादर बाबू और अन्यों ने बहुत मेरे साथ दिया। फादर बाबू आपके आज के इस प्रवचन के लिए, उतना ही नहीं आपके व्यक्तित्व के लिए बहुत ही खूबसूरत इंसान है फादर बाबू। अपने दाढ़ी मूंछ में बहुत गंभीर लगते हैं, लेकिन अगर उनके दिल में जाकर देखेंगे तो खुले पन्ने जैसा बहुत ही खूबसूरत इंसान है। और उन्होंने मेरा खूब साथ दिया है और साथ दे रहे हैं। हर पल जब भी उनको याद करता हूँ, वो उनकी उदारता, दिल की उदारता, मन की उदारता, साथ देना, समय देना फादर बाबू की खूब खासियत है। तो मैं फादर बाबू को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, जितने भी अच्छे शब्दों में उन्होंने मेरे बारे में कहा, और सभी साथ के लिए, सेवा के लिए, उदार मन के लिए, सब के लिए फादर बाबू, थैंक यू सो मच। फादर हेराल्ड तावरो यहाँ के पल्ली पुरोहित हैं। सेमिनरी में हम लोग, वो बड़े भाई थे, हमसे थोड़े साल पहले उनका पुरोहित अभिषेक हुआ था। और जब फादर हेराल्ड यहाँ पर तो 1-1.5 साल से हैं, उसके पहले भी फादर हेराल्ड एक सादे इंसान हैं और हमेशा हंसमुख चेहरे से, और हमेशा जब भी उनको याद करते हैं हमारा साथ देते हैं। मेरे साथ वो कुछ दिनों पहले उनकी ख्वाहिश थी कि वो रायबरेली जाएं, बीच में मैं गया था, मेरे साथ वो आए थे। फादर हेराल्ड, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स इन सेंट जोसेफ्स कैथेड्रल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। फादर जोसेफ सगायनाथन, जिनको हम अन्ना बोलते हैं, तमिल में अन्ना मतलब बड़े भाई, और उन्होंने बड़े भाई का किरदार बड़ा खूब निभाया। सेंट जोसेफ्स कॉलेज में 3 साल, या उसके पहले सेमिनरी में, और जब मेरी थोड़ी बहुत शक्ल और उनकी थोड़ी बहुत शक्ल हम में दिखती है तो वो कभी कभी हम लोग कोई कहते हैं कि आप ही एक ही जगह के हैं क्या, और आगे बढ़कर कहते हैं कि आप भाई हैं क्या। तो इस तरह के प्यार दुलार, और उनके जब यहाँ पर परिवार भी आए थे और उनका स्नेह, और फादर जोसेफ सगायनाथन का विशेष रूप से स्नेह, साथ और उनकी मदद और उदार मन के लिए फादर जोसेफ, थैंक यू सो मच। आगे बढ़कर वो जाएंगे सड़वा में सेंट जोसेफ स्कूल के प्रिंसिपल। आई विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल गॉड्स ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मैं धन्यवाद देता हूँ सारे सिस्टर्स को। इस तरफ से शुरू करें। सिस्टर प्रीमा, जब मैं यहाँ पर आया था वो प्रिंसिपल थी, और प्रिंसिपल के रूप में बड़ा लंबा सफ़र उनके साथ मेरा रहा स्कूल ऑफ नर्सिंग का। उसके बाद वो अभी वार्ड में कार्यरत हैं। सिस्टर प्रीमा एक नम्र स्वभाव की व्यक्तित्व है उनका, और सेवा देने में मैंने कहा बहुत बार उनके बारे में कि वो तत्पर रहती हैं हर बार किसी को मदद करने के लिए, और कभी बैठती नहीं हैं। उनकी फीस्ट के दिन मैंने कहा भी था कि वो अगर सीधे चलती तो अमेरिका पहुंच जाती। कहने का मतलब यह कि हर दम तत्पर, हर पल, कभी बैठती नहीं। मैंने उनको बैठे हुए कभी नहीं देखा, चलते हुए ही देखा है, खड़े हुए भी देखा है। सिस्टर प्रीमा ने
बहुत मुझे प्रेरणा दी है स्कूल ऑफ नर्सिंग के प्रिंसिपल के रूप में। उनका सादगी जीवन और नम्रता स्वभाव बहुत भाता है। सिस्टर प्रेमा, thank you so much for being in my life here in this long journey, and I also wish you all the best and a good health and all that God's blessings. Thank you so much. All the reverend sisters, Sister Ivy लंबे समय से हैं, मुझसे पहले उनका मार्गदर्शन हमेशा मेरे साथ रहा। मैंने इसके पहले भी जिक्र किया है, और एक बड़ी बहन की जैसा वो हमारे साथ रही और हर बल हर चीज़ के लिए मदद करने के लिए वो तैयार थे। अभी दोबारा वो प्रिय सुपीरियर के रूप में यहाँ पर कार्यरत हैं। मैं उनके लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर की अनगिनत आशीष भी उन पर मांगता हूँ। थैंक यू सो मच सिस्टर आईवी फॉर बीइंग a great support to me here in Nazareth. Sister Ivy. Sister Monsi, as a matron, as a vice principal, now as a matron, she joined with me in my journey as a director, and she as a matron has really been a great support as a sister to me personally, to the hospital, to take this hospital to greater heights. She has got a big share in that contribution. Thank you so much, Sister Monsi, for all your helps, cooperations, and every time for standing by in thick and thin of my life. Thank you so much, Sister Matron, Sister Monsi. Our Sister Eugene B, as a principal now, as ward in charge, every time she has supported me in every planning that we did for School of Nursing. And she is one of the great principals. She is doing a great duty as a principal here. I thank you so much. Wish you all the best in your future endeavors also. Thank you so much, all the reverend sisters. If I begin with the departments, for example, from pharmacy, Sister Albert was there, Sister Shilpa, Sister Vandana was previously there, and Sister Lynette is there, and in the lab, Sister Sneha Rose are doing a very great job, single-handedly handling the whole department there, and all the fathers have to go through her, and all the patients also, the blood test, all that. She is doing a great service. And Sister Prima, and as we go ahead, Sister Lizzie, all the time busy looking after the patients, Sister Tracy, Sister Clarin, Sister Bensi, Sister Alfina, Sister Anne, Sister Anchal, and here in the School of Nursing, very specially Sister Roshni. She has been a great help in every planning for the celebrations or programs and in the teaching line. Thank you so much, Sister Betty here. And विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सिस्टर लियोनी के लिए. Sister Leonie, as a matron, when I joined here in 1990, she was here in 1998, 97 onwards, 2003 onwards, I started my journey along with Sister Leonie as a matron. For 2 years to 3 years I was there with Sister Leonie, and as a matron I have seen her. She was a very strict and very good matron, and she supported me a lot. Once I was the director for 6 months, and only 2 of us managed this hospital for 6 months as a director and as a matron when Father Joseph was transferred. And so many things took place that time, lots of problems and things like that. Sister Leonie had always supported me, and here as today, now she has come as a warden, this hostel in charge. Thank you so much, Sister Leonie. Wish you all the best, good health, and grow younger and younger, not older. And she is always growing younger with you. Thank you so much, and may God bless you. I think I have not missed any sister's name, those who are here. Sister Ushata and Sister Devotia. Sister Ushata and Sister Devotia. Sister Ushata, of course, I know when I came here, she was looking after maternity ward,
and she was interested in music. I remember those days I taught her harmonium how to play, and she was playing harmonium, and after that I think harmonium got spoiled. She can still play, but the harmonium got spoiled, and after that she stopped playing harmonium. I remember that. And she, as a very simple sister, has looked after this hospital very well, especially the maternity ward. No woman has, without seeing Sister Ushetta, wouldn't get delivered. So she is so expert in taking deliveries. Thank Sister Ushetta. Now she is in the surgery ward. Thank you so much, Sister Ushetta. Sister Devotia was in the lab. She's a lab expert also. Now she's looking after the inpatients IP section in the billing section. Thank you so much to all the Reverend Sisters in the past, Sister Bridget and so on, and the present sisters. Thank you so much. You have contributed a lot through your prayers here. I'm quite edified to the prayers that you do here all through the day for the hospital, for all of us, and also after the Mass. This is the only congregation I have seen praying for the priests. And continue praying for me and being a great support through the prayers always. Thank you so much once again for all that you have been. I thank you all the nurses here sitting. हमारे ज़िंदगी के सफ़र में आप भी मेरे साथ रहे, और कुछ लोग पढ़ाई करते हुए नर्सेस बने स्टाफ, कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग पढ़ाई कर यहाँ पर आए हैं। सभी लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी इन पवित्र हाथों से बहुत लोगों को ज़िंदगी वापस मिली है, और आपने बड़ा किरदार मेरे जीवन में निभाया है। इस अस्पताल को आगे बढ़ाने में, विकास की ओर आपका बहुत बड़ा साथ रहा है, और स्वास्थ्य लाभ देने में, लोगों की सेवा देने में, जब आपको याद किया आपने कभी ना कहते हुए लोगों की सेवा करी, दिन रात सेवा करी, नाइट ड्यूटी, डे ड्यूटी, जब भी हमने याद किया आपने यहाँ पर सेवा दी है। आपकी सेवा के लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। आपकी बुलाहट के लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। आपकी जो हाथ भगवान ने दिए हैं वो पवित्रता की ओर बढ़ते हुए, जितने भी लोगों को आप स्पर्श करेंगे उनमें वो परमेश्वर का आभास हो, और वो स्वस्थ लाभ पाकर अपने घर वापस लौटें। अपने जिम्मेदारियों को बखूबी समझें और हमेशा दिल से, तत्परता से दूसरों की सेवा करें। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच। तालियां। I see very reverend sisters from Sadwa. Those who have come here, sisters, thank you so much for being here in this celebration today. James भैया सबसे छोटे भैया हैं, और यहाँ पर मार्च से मुझे लग रहा है कि बहुत लंबा रिकॉर्डिंग उन्होंने किया। अगर मूवी बनाते तो उनकी बड़ी हिट मूवी हो जाती, क्योंकि यहाँ पर हीरोज़ भी हैं, हीरोइंस भी हैं, सिस्टर्स भी हैं, सब लोग हैं। तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया से यहाँ पर मिस्सा बलिदान, जो हम सुनते हैं हर संडे और रोज़ लॉकडाउन के समय पर, रात दिन, और विशेष रूप से मेरे प्रेजेंटेशन के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। मैं विशेष रूप से जेम्स भैया को धन्यवाद देता हूँ, उनके फ्यूचर के लिए धन्यवाद देता हूँ। ऐसा ही आप आगे बढ़ते रहें। परमेश्वर की बहुत आशीष आप पर बरसे, ये हम सब की प्रार्थना है विशेष रूप से। So once again, as I complete, almost going to complete the years in Nazareth family, once again I thank so much each and every one of you. As I am going ahead to Rai Bareli, towards Lucknow it is, I invite each and every one of you, if at all you think of coming to only Rai Bareli, most welcome. Also if you are going ahead to Rai Bareli, एक कप चाय के लिए, सुबह आता है तो एक कप कॉफ़ी के लिए, या कुछ पानी पीने के लिए वहाँ पर एक सफ़र का एक वहाँ पर रुक सकते हैं। और प्लीज़ मोस्ट वेलकम टू राय बरेली, एंड ऑल्सो in between going on coming, so that I may not feel lonely that side while being here with so many people. There are not so many in the lockdown. हम अभी प्रिंसिपल बनने जा रहे हैं बिना बच्चों के, पैरिश प्रिस्ट कोई बिना लोगों के, तो तब आप लोगों का जो
की प्रार्थना है वो बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। गॉड ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। काइंडली स्टैंड फॉर द लास्ट प्रेयर। प्रसाद भजन। प्रभु दया सागर है और उसके यहाँ अपार मुक्ति भी है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के द्वारा तूने हमें क्रिस्त के सहभागी बनाया है। हम अपने जीवन और आचरण में प्रभु और यीशु के समान बने तथा स्वर्ग में उनके साथ विराजमान हो सके। ऐसी कृपा कर इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करें सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। आप लोग उदा लें। प्रभु की शांति एवं प्रेम आपके साथ सदा रहे। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद।
पार